Hello students, welcome to my 10th video. This video is related to the unit life processes, in which so far we have already discussed about nutrition and respiration. The next one is transportation. In multicellular organisms in particular, it is very essential that materials are to be transported from one part of the body to the other so that all the cells can receive the necessary materials. For example, in nutrition, we have studied that in small intestine, digested food are absorbed by the wall. Therefrom, it is being transferred with the help of blood. Likewise, in the chapter respiration, we saw that in lungs, oxygen is received in blood. That oxygen is to be transported to different tissues of the body. And from the tissues, carbon dioxide is brought back into the lungs to be released. And that happens because of blood circulation. So what I mean, transportation is very essential for transport of materials from one part of the body to the other, specifically in multicellular organisms like human being. Let's see what are the needs. The need for transportation in man, बहुत सारे needs हैं, like to transport oxygen and carbon dioxide, जैसा कि हमने respiration chapter में देखा. To transport food, digested food small intestine से blood के जरिए शरीर के हर हिस्से में पहुँचेगा, transport के जरिए. Number 3, to transport nitrogenous wastes. सेल के अंदर जो भी वेस्ट्स बनते हैं, उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, उसको किडनी के ज़रिए बाहर निकालना है, तो किडनी तक उसको ट्रांसपोर्ट करना ट्रांसपोर्टेशन का काम है. लाइकवाइज ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स एंड सो ऑन. तो मेनली we will study transport of oxygen and carbon dioxide, transport of food and transport of nitrogenous wastes. These are the need for transportation in man. In man, let's see what are the components of transportation. There are three main components for transportation. Blood. Blood is the circulating fluid. सर्कुलेटिंग फ्लूइड आसानी से सर्कुलेट करता है, आसानी से मूव करता है, इसलिए फ्लूइड ही ट्रांसपोर्ट का मेन साधन है. हमारे बॉडी में दो तरह के फ्लूइड हैं, एक तो आप जानते हो ब्लड और दूसरा है लिम्फ. ये दोनों आपने पढ़ा है क्लास 9 में. ब्लड यू हैव स्टडीड एज फ्लूइड टिश्यू, और जैसा कि आपने पढ़ा है कि ब्लड इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ प्लाज्मा एंड द अदर इज़ ब्लड सेल्स. वन इज़ द प्लाज्मा एंड द अदर इज़ ब्लड सेल्स. ये क्लास 9th के सिलेबस में है, ये आप देख सकते हो. And there are three types of blood cells: RBC, that is red blood cells, WBC, white blood cells, and platelets. तो ये आप क्लास 9 से देख लोगे. Blood is composed of plasma and blood cells. Blood cells are also known as corpuscles. So red blood corpuscles, white blood corpuscles, and platelets. Second component is about heart.
हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन जो फ्लूइड को पूरे बॉडी में पंप करता है। ओके, हार्ट के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और तीसरा कंपोनेंट है ब्लड वेजल्स, ऑल्सो नोन एज ट्यूब्स, द ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड पासेस और ब्लड सर्कुलेट्स, पतले पतले ट्यूब्स जिसके अंदर से होते हुए ब्लड जो है पूरे बॉडी में रन करेगा। There are three categories of blood vessels. These are arteries, veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries. Now we'll study heart in detail. Blood we have already seen in class 9 as fluid tissue, and heart we'll be discussing now. In human being, heart is four-chambered. Heart is four-chambered. You can see the diagram in longitudinal section. LS means longitudinal section or also known as vertical section. जब हम हार्ट को ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई से काटते हैं तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और उसके अंदर जो जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। हार्ट के दो पार्ट हैं, इधर लेफ्ट और इधर राइट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट इज सीन विथ रेडिश ब्राइट रेड कलर and the right part with blue. Blue means deoxygenated blood and red means oxygenated. That I will discuss later also. So left and right part of the heart is separated with the help of a septum, which divides the heart longitudinally into left and right. Let us study different chambers and different tubes connected to different chambers of the heart. This is right atrium, this chamber. This is left atrium. This is right ventricle. This is left ventricle. So these are the four chambers. These are the four chambers: right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Both auricles and ventricles are interconnected with the help of valves. With the help of valves. You can see these are the valves. They are called auriculoventricular valve or AV valve. AV valve. Then there are tubes connected to different parts of the heart. You can see this part known as vena cava. This vena cava brings blood from upper part of the body, that is your hands, your face, your brain, etc. आपके शरीर के ऊपर के हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके लाता है वेना कैवा। दूसरा है ये, जिसको इन्फीरियर भी कहते हैं, ये भी वेना कैवा है। ये आपके बॉडी के लोअर पार्ट से, यानी चेस्ट, एब्डोमेन, लेग्स, ऐसे हिस्से से ब्लड लाता है। सो दीज आर टू branches or tubes. Since they bring deoxygenated blood, so they are called veins.
So these are the largest vein of the body, called vena cava. Both add the blood into this chamber known as right atrium. From right atrium, blood comes into this chamber known as right ventricle. Right ventricle. From right ventricle, blood goes to this branch known as pulmonary artery. Pulmonary artery takes the blood to lungs. You can see there are two parts. These two parts take the blood into the lungs. What for? In lungs they get oxygen and release कार्बन डाइऑक्साइड. तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड गया लंग्स में, वो लंग्स में जाकर ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा. इसके बाद जो ब्लड वापस आएगा वो पल्मोनरी वेन के जरिए यहाँ वापस आया. इस चेम्बर का नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम. लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आया ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये लंग्स से आया है. इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा इस ब्रांच में जिसको कहते हैं एओर्टा. इसको कहते हैं एओर्टा. एओर्टा के जरिए ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और पूरे बॉडी में घूमने के बाद फिर वेना कैवा में वो रिटर्न आ जाएगा ब्लड वापस. तो जो ब्लड बॉडी में जाएगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड. बॉडी ऑक्सीजन रिसीव करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस हार्ट में भेजेगा वेना कैवा के जरिए. बैक फ्लो नहीं होगा, यानी आप जो एरो देख रहे हो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एरो के हिसाब से ही ब्लड सर्कुलेट होगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा. ओके, व्हाई इट इज़ सो? लेट मी टेल यू. इट इज़ बिकॉज ऑफ वाल्व. ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है और इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये मेजर आर्टरीज और वेन, इसके भी रूट में, दोनों आर्टरीज हैं, इसके भी रूट में वाल्व है. तो ये जो वाल्व है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है इसको कहते हैं एवी वाल्व. जैसा कि आप जानते हो कि वाल्व एक ही तरफ खुलता है. तो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व डाउनवर्ड खुलता है और आर्टरी के रूट में जो वाल्व है वो अपवर्ड खुलता है. ये अपवर्ड खुलता है. तो ब्लड आर्टरी में ऊपर की तरफ जाएगा और ऑरिकल से वेंट्रिकल में डाउनवर्ड जाएगा. अगर वो उल्टा जाए, अगर ब्लड वापस इधर जाना चाहे तो संभव नहीं है क्योंकि वाल्व क्लोज हो जाएगा. तो ये किसी भी हालत में संभव नहीं है. यहाँ पर भी अगर बैक फ्लो होगा तो वाल्व क्लोज हो जाएगा और बैक फ्लो पॉसिबल नहीं होगा. उसी तरह से आर्टरी की भी बात करें, अगर ये वापस इस ओर ब्लड आना चाहे तो नहीं आ सकेगा, वाल्व क्लोज हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पर भी अगर वापस आना चाहे तो नहीं, वाल्व क्लोज हो जाएगा. तो ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच के जो वाल्व हैं इसको कहते हैं
ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर वाल्व, और जो आर्टरी के रूट में है इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये दोनों ही सेमी ल्यूनर वाल्व है। आर्टरी के रूट में पाया जाने वाला वाल्व कहलाता है सेमी ल्यूनर वाल्व, और इसको क्या कहते हैं? ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व। होप इट्स क्लियर। Let me repeat. Heart has 4 chambers: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Now the branches, the auricles are connected with vena cava. This is superior vena cava, this is inferior vena cava. These vena cava brings the blood from the body, then that blood comes to right ventricle. From right ventricle, blood goes to lungs with the help of pulmonary arteries, and from lungs, oxygenated blood comes back with the help of pulmonary vein into the left atrium, from left atrium to left ventricle, from left ventricle to body with the help of aorta. So this shows the circulation of blood in different chambers of heart. Now how heart operates? When both the auricles contract, blood comes into ventricles. When both the auricles contract, blood comes into ventricle. On the other hand, when both the ventricles contract, when both the ventricles contract, blood passes into these arteries. So there are two phases of the function of the heart. When auricles contract, when auricles contract, ventricles relax, and when ventricles contract, auricles relax. So there are two phases. One is called auricular contraction, and ventricular relaxation. ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो वेंट्रिकल उस समय रिलैक्स कर रहा होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ऑन द अदर हैंड इसका उल्टा होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑरिकल्स रिलैक्स करेगा। ठीक है, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त वेंट्रिकल्स रिलैक्स करता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ऑरिकल्स रिलैक्स, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। बात को समझो, जिस फेज में ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उस फेज में वेंट्रिकल्स रिलैक्स होता है, और जिस फेज में ऑरिकल्स रिलैक्स होता है उस फेज में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो डायग्राम को देख करके ही समझ जाओगे कि जिस समय ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पर प्रेशर पड़ेगा और ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाएगा,
उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है। और नेक्स्ट में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पे दबाव पड़ेगा, लेकिन ब्लड ऑरिकल में नहीं जा पाएगा क्योंकि एवी वाल्व क्लोज हो जाता है। इसलिए ब्लड जाएगा दो बड़े आर्टरीज़ में, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। इन दोनों से होता हुआ ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज रिलीज ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा। तो ये जो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल या फिर हार्ट बीट। इसके बारे में मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी, व्हाट इज़ हार्ट बीट एंड हाउ इट ऑपरेट्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। You will follow the diagram, you will practice the diagram, you will practice the arrows। एरो सही होना चाहिए, सारे लेबलिंग सही होनी चाहिए। इस चैप्टर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे कलर के साथ। राइट हैंड साइड को ब्लू से और लेफ्ट हैंड साइड को रेड से। रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना आप नोट करोगे, डायग्राम प्रैक्टिस करोगे। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।